Good evening, everyone. Myself, Kajal Tanna, President of Host Club, that is Eleven Club of Umargaon, District 306. First of all, I am very much thankful to our DC, Dr. Tejalji Desai, for giving us amazing opportunity to host this inter-district webinar. It is my immense pleasure to welcome all the 10 district chairmen for joining us. That is 303 DC Sheila Desmukh, District आपके पास इको हो रही है Bina आपके Shah, पास इको हो रही है 305 DC Nisha Khanpur, DC 307 DC Rita Sharma, 308 DC Sima Kapoor, 311 DC Sandhya Gupta, District 317 DC Vaishali Lokhande, 320 DC Anita Nanjain, and 321 DC Anita Natarajan, District 326 DC Rasika Bahadur, and District E Admin Kavita Bihari for technical support by creating Zoom link, YouTube link, and handling the whole webinar. It's a very proud moment for us to have you all in this single platform. I am sure that you will get enough information regarding this topic. Once again, thank you all. Now I would like to invite हेलो काजल टुगेदर हेलो 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 am I audible? Yes, of course. Yes, we have our two past district chairmen. We welcome them wholeheartedly. Past district chairman Dr. Rasmi Thakral and past district chairman Bina Desai. Welcome Bina ji, welcome Rasmi ji. Okay, over to. Thank you. Yes. Welcome Rasmi ji. Over to Club ISO for ISO prayer. Hello, Kajal. Ria is not available. Then go ahead. Go ahead. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are all thy children. Notwithstanding the differences in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help whenever or wherever the need for services arises. Help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner weal worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. Thank you, Poonam. Now, I would like to invite past President Kirti Jethwa. She is the speaker of the inter-district webinar. Now, Kirti, start. थैंक यू प्रेसिडेंट काजल। सभी इनरव्हील सिस्टर्स को मेरा हरा भरा और जलमय नमस्कार। सबसे पहले मैं क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन डॉक्टर तेजल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और आज यहाँ पे जो भी ज्वाइन हुए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट के 10 डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो भी यहाँ पे इनरव्हील सिस्टर्स आज जुड़ी हुए उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ज्यादा समय न गवाते हुए हम पानी बचाने और रिसाइकल करने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब इस प्रेजेंटेशन के जरिए काफी कुछ आज जान पाएंगे, राइट। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन नोट डाउन
and in the end of the presentation we will have a question answers. तो जैसे हम जान पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे हम लोग अभी एक प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पहला टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज. ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज अभी क्यों करना है. अभी करने का यही एक रीजन है. नेक्स्ट स्लाइड. अभी करने का ये एक रीजन है कि अभी बारिश का सीजन है थ्रू आउट द इंडिया, और ये जो बारिश का सीजन है हम इसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज. तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ 2 महीने गुजर चुके हैं बारिश के, फिर भी हमारे पास आधा सीजन बाकी है. तो ये चीज हम जरूर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. तो हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि व्हाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज नेसेसरी. So here we can use optimum utilization of water, rain water जो necessarily हम लोग जो रूफ टॉप यानी कि छत से किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी इमारत की छत पर जो रेन वाटर इकट्ठा होता है वो अक्सर वो जाया हो जाता है. नो डाउट अभी काफी लोग इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टैंक बना लिया, घर के अंडरग्राउंड में कोई टैंक में हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसी काफी टेक्निक्स हैं. लेकिन जो पानी अभी भी बह जा रहा है, वॉश आउट हो जाता है, वो पानी हमें यूज करना है. अब इससे दूसरा क्या होगा कि सॉइल लेवल पे जो भी हमारे प्लांट्स के रूट्स हैं वहां पे सारे सॉल्ट्स, सारे क्षार जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ग्राउंड वाटर की वजह से क्या होगा कि ये जो सारे क्षार हैं वो डीपर लेवल तक चले जाएंगे, और आर्टिफिशियली वी कैन रिस्टोर द ग्राउंड वाटर by using groundwater level by using this rainwater harvesting by the technology groundwater recharge. अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ की जो वेटलैंड इकोसिस्टम है इसको हम मेंटेन कर पाएंगे. अब ये किस तरह से होगा कि जैसे अब आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राउंड वाटर हमेशा लेवल जो है रिचार्ज रहेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगेंगे और इसकी वजह से सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा. सेकेंडली क्या होगा कि जैसे आप जब बाहर कचरा फेंकते हैं, कोई भी हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं, किचन से जो वेस्ट निकलता है उससे कंपोस्ट बनाते हैं, या बाहर का जो भी कचरा है वो सड़ने लगता है, वो किस तरह से होता है. ये जो प्रक्रिया है सड़ने की और उसको फिर से मैन्युअली अंदर सॉइल के अंदर में वो चला जाता है. तो ये करने के लिए जो भी कीटाणु रिस्पॉन्सिबल है उसको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है. तो सैप्रोफाइट्स के लिए ये नमी होना जमीन में बहुत जरूरी है. तो ये जो नमी बनी रहेगी हमारी इस टेक्निक से, उससे क्या होगा कि सैप्रोफाइट्स का भी लेवल मेंटेन रहे. हेलो कीर्ति जी. हेलो कीर्ति. हेलो कीर्ति. उसका फिर से खाद हो रहा है. हेलो कीर्ति, एक मिनट. आपको YouTube में से लीव करना पड़ेगा. इको आ रहा है. कविता बिरारी ने बोला है कि YouTube हमने देख लिया कि क्यों करना है, व्हाई वी हैव टू डू. नाउ वी विल सी हाउ हम ये कैसे करेंगे. यस, अभी देखिए ये जो प्रोसेस है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, ये नेचुरली भी होता है. ये कैसे होता है नेचुरली कि जैसे रिवर्स है या वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या तालाब है, ये लेक्स हैं, ये जो है वहां पे जो भी क्रैक्स हैं उसके अंदर से वाटर परकोलेट होता है और इस तरह से नेचुरली ये लेवल मेंटेन रहता है. बट हियर वी आर यूजिंग द रेन वाटर
कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप्स, छत से हम जो पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का, हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियली करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अभी उमरगांव क्लब ने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी हमारा हो चुका है। उसी वीडियो के हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आपके लिए स्लाइड्स यूज किए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट फोटो में आपको एक ड्रम दिख रहा है, प्लास्टिक का 250 लीटर्स का ड्रम है ये। आपको नया ड्रम बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप पुराना ड्रम ले सकते हैं, बस आपको उसको सफाई से अच्छा सफाई कर लेना है, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप देख पा रहे हैं वहां पे सिस्टमेटिकली उसको होल किए गए हैं उस ड्रम के अंदर में। और सेकंड फोटो में आप देख पा रहे हैं कि जिस बिल्डिंग के अराउंड हमको ये प्रोजेक्ट करना है, उस बिल्डिंग से 2-3 पाइप नीचे आ रहे हैं उसकी छत से। तो ये जो होगा ये हमारा रेन वाटर, ये पाइप जो है वो नीचे लेकर के आएगा। नेक्स्ट। देखिए अभी हमारा जो 250 लीटर्स का जो ये ड्रम है, उसके लिए हमें 4x4 के जमीन की हमको जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा रखा है, स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे एक फोटो में, और दूसरी फोटो में आप देख रहे हैं कि एक गड्ढा हमने 4x4 का किया है, जिसमें ये ड्रम हमने एज इट इज नीचे बिठा दिया है इसके अंदर में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लेना है। फर्स्ट फोटो में देख रहा है आप, आधा तक भरा हुआ है, सेकंड में हम लोग उसको ऊपर तक ला रहे हैं। नेक्स्ट फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर तक हमने ला लिया है, इसको पूरा भर दिया है जो अपने पत्थर है, लेकिन एक साइड में आपको एक होल बनाकर रखना है। जो सेकंड फोटो में जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर से जो पाइप आएगा वो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जो ड्रम में जो होल किया गया है वहां से ये पाइप जुड़ेगा, जो ऊपर से छत के ऊपर से जो पानी ला रहा था, ये वो पाइप है। यहाँ पे हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद में आपको ये पूरा एरिया ढक देना है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, आप देखिए यहाँ पे हमने ये किस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है। ड्रम में जो होल किया था उससे हमने ज्वाइंट कर दिया है। इससे क्या होगा कि ऊपर से जो भी पाइप आ रहा है, पाइप से जो पानी आ रहा है इस ड्रम में जाएगा, ड्रम के होल से वो पूरी जमीन में, पूरी सॉइल में इट विल परकोलेट, ये पूरे एरिया में ये पानी फैल जाएगा। आप बिलीव कीजिए कि उमरगांव जो उमरगांव इनर व्हील क्लब ऑफ उमरगांव जो है, इट्स अ बेसिकली वाटर कैचमेंट एरिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और ये पूरे का पूरा पानी यहाँ जमीन में परकोलेट हो जाता है। तो आप सेकंड फोटो में देख पा रहे होंगे कि हमने पूरा कवर कर दिया है, आपको ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आएगा, राइट। तो मैं आपके लिए ये जो स्लाइड्स है फिर से आज दिखा रही हूँ, फर्स्ट स्लाइड से जहां से हमने ड्रम शुरुआत किया था, तो आपको एक बार और आइडिया आ जाएगा। पूनम प्लीज फर्स्ट स्लाइड। अपना ड्रम वाला है ना। हाँ, देखिए आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नो इशू, लेकिन ये अवेलेबल हो जाता है इजीली। और आपको ये मतलब आपको नया तो खरीदना ही नहीं है, बस ये केमिकल वाले होते हैं मोस्टली ये ड्रम्स, तो आपको अच्छे से क्लीन करना है इसको। इस तरह से आप एक परफेक्टली इसमें आप छेद कीजिए, होल्स बनाइए, और कोई एक सूटेबल अच्छी सी जगह ढूंढिए जहां से आप ज्यादा से ज्यादा
बारिश का पानी, रेन वाटर आप कलेक्ट कर सकते हैं और आगे आपको वहां से आपको देखें कि प्रॉपर चैनल आपका पाइपलाइन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए छत से नीचे पानी लाने के लिए। नेक्स्ट। इसमें देख रहे हैं कि हमारे ये 250 लीटर्स की ड्रम के हिसाब से 4x4 की जगह हमको चाहिए। तो वो जो जगह है हमने यहाँ पे करके रखी हुई है, मार्किंग आप देख रहे हैं। और दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं कि एक गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर में हमने ये ड्रम प्लेस करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए इतनी जगह काफी है। अगर बड़ा अगर ड्रम यूज करते हैं तो शायद आपको गड्ढा थोड़ा और डीप करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में हमने क्या किया है कि पत्थर भरना शुरू किया है अगल बगल की जगह में, जो आपको ऊपर तक लाना है और पूरा नेक्स्ट। और देखिए इसमें अब क्या हो रहा है कि ये जो प्लम्बर है उसके ड्रम के ऊपर की साइड में एक होल बना रहा है, जो ये पाइप को हम जोड़ेंगे, जो बारिश का पानी जो आ रहा है उसको वो जोड़ेंगे उस पाइप से अंदर इस ड्रम के अंदर में, ताकि वो पूरा पानी इसके अंदर में चला जाए। और ये लास्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पाइप हमने इस ड्रम में जोड़ दिया है, उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। सो इट्स वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना सिंपल है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम बाद में क्लियर करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि वेयर टू डू दिस प्रोजेक्ट, ये आप कहाँ कर सकते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये बेस्ट ऑप्शन है स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने ये प्रोजेक्ट स्कूल में किया था, तो स्कूल में जब हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से जान पाते हैं। इट इज लाइक अ प्रैक्टिकल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उनके लिए ये लिटरली एक प्रैक्टिकल होता है। उनको हमने पहले से ब्रीफ कर दिया था कि हम ये चीज क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होता है, सो दैट दे कैन अवेयर, मतलब वो भी इस चीज को समझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो पत्थर वगैरह डालने का काम है आप बच्चों से करवा सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत मजे से करते हैं वो लोग। तो ये सबसे बेस्ट आइडियल प्लेसेस हैं। इसके अलावा आप ये कहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ऑफिसेस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी ये कर सकते हैं। ईच एंड एवरी हाउसिंग सोसाइटी कैन डू दिस। आप बंगलोज में भी कर सकते हैं, अगर आपके बंगलो में इतनी जगह है तो यू कैन ऑल्सो डू पर्सनली। हाउसिंग सोसाइटीज में ईच एंड एवरी हाउसिंग सोसाइटी कैन डू दिस। सबकी इतनी जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी उतना वाटर कलेक्शन ज्यादा होगा और उतना आपको रेन वाटर ज्यादा मिलेगा। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जैसे मॉल वगैरह है, आपको अगर वहां पे करने की परमिशन मिल जाती है तो आप सच मानिए ये भी एक आइडियल प्लेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग आते हैं तो कभी शायद वो भी देख पाए इस चीज को कि इस तरह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमने किस तरह से सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको रेन वाटर जो है वो ज्यादा कलेक्शन मिलेगा। रिलीजियस प्लेसेस, इवन आप मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, जहाँ पे भी ये पानी इकट्ठा हो रहा है रूफ का, आप ऐसी सब जगह पे कर सकते हैं। और लास्ट जो है ड्राई बोरवेल्स, ये भी एक बहुत ही ज्यादा आइडियल प्लेस है। तो आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि ड्राई बोरवेल में डिस्ट्रिक्ट 306 के ही अंकलेश्वर क्लब ने 2-3 साल पहले यही सेम प्रोजेक्ट किया हुआ था। आप फोटो देख सकते हैं कि जो ऊपर से बिल्डिंग से जो पाइप आ रहा है वो डायरेक्टली ड्राई बोरवेल में इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको ड्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिर्फ एक पाइप ही काफी है जो आपके ड्राई बोरवेल तक जाएगा डायरेक्टली। आप उसमें छत का जो पानी आ रहा है वो वाला पाइप आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपका बोरवेल थोड़ी सी दूरी पर है तो इन दैट केस यू कैन यूज द ड्रम, क्योंकि ड्रम से जो पानी परकोलेट होगा वो अपने आप बोर तक पहुंच ही जाएगा और आपका बोरवेल रिचार्ज हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, मतलब आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये किस तरह रिचार्ज हो गया है और आज की तारीख में भी ये रिचार्ज हुआ है। मतलब अंकलेश्वर क्लब में इन्होंने ये 3-4 साल पहले किया था और जाहिर है कि यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, तो इसकी वजह से ये जो ड्राई हुआ था जो बोर, वो पूरा फिर से रिचार्ज हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने ये देखा कि व्हाई एंड हाउ, और कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्यों करना है, ये चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी।
सी ये प्रोजेक्ट के देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कितना सिंपल है इंस्टॉल करने के लिए। सिर्फ एक दिन का काम है। अगर आपके सारे रिसोर्सेस सब कुछ रेडी है आपके पास, तो लिटरली एक दिन में ये चीज आप कर सकते हो, और ऑपरेट आपको बाद में कुछ भी नहीं करना है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे? अगर इसमें आप एक ड्रम खरीद रहे हैं जो आपको नया नहीं खरीदना है, राइट। सेकेंडली आपको पाइप खरीदना है, जो जितनी भी पाइप की आपकी लंबाई है उसका आपको कॉस्ट लगेगा, और थोड़ा जो है लेबर चार्ज लगेगा। तो अराउंड लास्ट ईयर हमने जब किया था ये प्रोजेक्ट, समवेयर आई डोंट नो 8,000 में कुछ हुआ था, और इस साल जब हमने किया तो हमें पाइप थोड़ा कम लगा था, तो और भी कॉस्ट कटिंग हो गई, और लिटरली ये 6,000-6,500 में ये प्रोजेक्ट हो गया था। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, आपको आगे सिर्फ इतना ही देखना है कि उसके ऊपर की मिट्टी बनी रहे, ये ओपन ना हो जाए। बारिश के चलते काफी बार ये हो सकता है कि ऊपर की जो पानी है वो बह जाएगा। तो ये आपको देखना है कि मेंटेनेंस सिर्फ इतना ही है कि इसके ऊपर की मिट्टी आपको जो लेवल है वो बना रहे बस। ये अब इससे क्या होगा कि आसपास जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होगा, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन आपका बिल्कुल भी रुक जाएगा। ये एक वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट है और बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। ये फ्यूचर के लिए हम लोग एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ईच एंड एवरी क्लब शुड डू दिस प्रोजेक्ट, और यूं नहीं कि आपने इस साल किया तो आपको अगले साल नहीं करना है। 4x4 की जगह आपको कहीं पे भी मिल ही जाएगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पे एक्शन लीजिए, और अपने क्लब में हर साल ये प्रोजेक्ट कीजिए, और एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह। अगर आपका बजट है तो आप कितनी सारी जगह पे कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट। और सच कहा जाए तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है कि आप स्लोली इसका इफेक्ट आप देख पाओगे, लेकिन 100% यू विल सी द इफेक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि ये चीज हम किस तरह से हो रही है, कहाँ कहाँ ये चीज की हुई है। देखिए, सेकंड में राजस्थान में तो ये चीज बहुत ट्रेडिशनली बहुत सालों से की जा रही है, एक सदी से की जा रही है। तो इनके लिए तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल बात है। लेकिन रिसेंटली जो पुणे में और तमिलनाडु में, ये दोनों जगह पे, पुणे सिटी और तमिलनाडु स्टेट, यहाँ दोनों पे भी अगर कोई भी नई बिल्डिंग रजिस्टर्ड हो रही है तो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग करना इज मस्ट, ये कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट थ्रू भी इसके लिए एक्शंस ली जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये बहुत ही एक आपकी स्लाइड पे जो अब दिख रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ये टेम्पल है मदुरई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। यहाँ पे सदियों पहले, शायद ये 1,500-2,000 साल पहले ये जो मंदिर बना है, इसका एक पिलर आप देख पा रहे हैं। इस पिलर के अंदर में पाइप है। जो पाइप वो तब उन्होंने बनाया हुआ है कि जो ऊपर से आपको दिखने में पिलर दिखेगा, लेकिन अंदर से ये हॉलो है। इसमें से जो रूफ टॉप में, छत में जो भी पानी इकट्ठा होगा, ये नीचे अंडरग्राउंड चैनल तक ये पहुंच जाएगा। तो pipelines are concealed so very well, you can see here, और pipelines carry the rain water from the rooftops to the underground channels. तो see their foresightedness, उनकी दूरदृष्टि को देखिए। आज जो हम कर रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। आज से 1,500-2,000 साल पहले भी उन्होंने ये सोच रखा था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज एन एंशियंट कॉन्सेप्ट, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तब का कॉन्सेप्ट है। और मेरे हिसाब से ओल्डेस्ट नोन है ये वाला एग्जाम्पल। आप शायद गूगल करें तो आपको और भी कोई एग्जाम्पल मिल सकते हैं। समय की कमी की वजह से मैंने आपको यहीं पे एक एग्जाम्पल दिखाया है। तो आप अगर कभी विजिट करते हैं इस मंदिर को, तो अब थोड़े से अलग नजरिए से इसको देखिएगा। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्यों जरूरी है और किस तरह किया जाए, कहाँ किया जाए, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपने देखे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की ओर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये ग्रे वाटर एक्चुअली होता क्या है। हमारे लिए सिर्फ ये शब्द नया है, द वर्डिंग्स आर न्यू फॉर अस, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत नोन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। सेकंड स्लाइड। या तो व्हाट इज ग्रे वाटर? ग्रे वाटर आखिर है क्या चीज? ग्रे वाटर इज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर।
relatively clean wastewater from kitchen, baths, sinks, washing machines, shower taps and non-toilet plumbing. आपके किचन के सिंक का पानी, आपके वॉशिंग मशीन का पानी, आपके हैंड वॉश करने का जो बेसिन है उसका पानी, आपके बाथरूम का पानी, ये सब पानी जो है आपने एक बार यूज किया है, लेकिन ये इतना गंदा भी नहीं है कि आप उसको रीयूज ना कर सकें, राइट? तो ये है ग्रे वाटर। आप लोग किचन में जाते होंगे, सब लोग सुबह से रात तक हमारा काफी टाइम किचन में बीतता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना ग्रे वाटर जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अभी जो है यहाँ पे हमको सबको पता है कि हम लोग कितना लीटर्स एंड लीटर्स वाटर हम लोग वेस्ट करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि एक इंसान दिन में 150 लीटर वाटर जनरेट करता है, मतलब ग्रे वाटर जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और आप एक महीने में मतलब एक वीक में, एक महीने में और एक साल में आप कितना ज्यादा ग्रे वाटर जनरेट करते हैं। और हम लोग इस बात से बिल्कुल भी अनअवेयर हैं कि ये वाटर जो ग्रे वाटर जनरेट हो रहा है वो भी हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसका भी हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो हमको ये जानना है कि ये जो इतना सारा ग्रे वाटर हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम किस तरह से फिर से रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए अभी ये फर्स्ट आपको दिख रहा है फोटोग्राफ, यहाँ पे दिखाया है कि वो शॉवर का जो पानी है, वॉश बेसिन का जो पानी है, ये इकट्ठा करके चैनलाइज करके एक कलेक्शन पॉइंट पे ले करके वहां से ही अलग से एक पाइपलाइन आप टॉयलेट फ्लश में दी गई है। तो इस तरह से आपका जो भी पानी हम वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, सॉरी ग्रे वाटर जो जनरेट हो रहा है, यू कैन यूटिलाइज दैट वाटर इन दिस मैनर। तो इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक या मेथड कह सकते हैं आप। सेकंड। देखिए ये भी आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये भी कितना कारगर तरीका हो सकता है, हाउ इफेक्टिव इट इज। ये जो भी आरओ का आउटलेट का जो भी पानी आ रहा है, इट इज क्लीन वाटर। तो आप उसको इस तरह से वॉश बेसिन में भी यूज कर सकते हैं, इवन वॉशिंग मशीन में भी डायरेक्टली आप इसका कनेक्शन दे सकते हैं। ये नहीं कहूंगी मैं कि सिर्फ इतने पानी से हो जाएगा, लेकिन ये जो पानी आपका बाहर वेस्ट हो रहा है वो पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों फोटो से आप जान सकते हैं कि ये किस तरह से हम इस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी पानी को आप गार्डन में ले जा सकते हैं, आपके गार्डन एरिया में भी इसका आप आउटलेट छोड़िए तो वो भी वहां पे भी काम आ जाएगा। अगर आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बेसिन में यूज कर सकते हैं, किचन सिंक में आप इसका पाइपलाइन दे सकते हैं। तो ये सारा जो जितना भी पानी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऑल यू कैन रीयूज इट। अभी अभी हम जानेंगे कि वेयर टू डू दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये हम कहाँ पे, ये सेटअप हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अगेन स्कूल एंड कॉलेजेस, ये भी एक आइडियल जगह है। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द हैंड वॉश एंड मिड डे मील किचन एरिया, यू कैन यूज दैट फॉर गार्डनिंग। रेसिडेंट्स, होटल्स, हॉस्टल्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स में भी आजकल जो पब्लिक टॉयलेट का जो वॉशिंग एरिया है वहां का जो पानी है वो लोग गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। लाइक हॉस्पिटल से भी निकलता है पानी, काफी सारा हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा ग्रे वाटर जनरेट होता है, वो वहां पे वो लोग टॉयलेट फ्लशेस में वो लोग यूज कर आजकल कर रहे हैं। और आप अगर नहीं कर रहा है कोई तो आप उनको ये सजेस्ट बिल्कुल भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी जगह पे बहुत बड़ा अगर आरओ प्लांट लगा है तो वहां का जो पानी है उसका आउटलेट आप डायरेक्टली लॉन्ड्री के लिए दे सकते हैं, यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए दे सकते हैं, इवन बेसिन के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पूरी इस सारी जगह पे ये सेटअप हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है और आप काफी देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सेवन हिल्स हॉस्पिटल जो है बॉम्बे में और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी जो हॉस्पिटल है आपका, यहाँ दोनों इस दोनों जगह पे ये ग्रे वाटर ये लोग रीयूज कर रहे हैं। फ्लशेस में, टॉयलेट के फ्लशेस में यही वाला पानी यहाँ पे आता है और बाकायदा कहीं कहीं जगह पे वहां पे नोट पे लिखा रहता है कि यहाँ पे क्लीन वाटर नहीं आएगा, थोड़ा सा ग्रे ब्राउन पानी आएगा क्योंकि ये रीयूज किया हुआ पानी है।
अब एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ऑफिसर्स ऑफ क्वार्टर्स कोयम्बतूर में भी ये एक सेटअप वहां पे ग्रे वाटर यूज करने के लिए किया गया है। और पब्लिक टॉयलेट, जो नवी मुंबई में जो पब्लिक टॉयलेट है, वहां का जो वॉश एरिया का पानी है, ये लोग वहीं पे जो रास्ते पर जो गार्डन बनाते हैं, वहीं पे ये लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरह जय नारायण हाई स्कूल बॉयज हॉस्टल है कानपुर में, वहां पे भी ये सेटअप किया गया है। तो देखिए, इस तरह से बड़े पैमाने पर भी ये चीज हो रही है। मैंने आपको दोनों चीज दिखाई है कि किस तरह बड़े लेवल पे भी ये हो सकता है, किस तरह छोटे लेवल पे भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, एक एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ, रिसेंट एग्जांपल है ये, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट भरूच, गुजरात की भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह से अभी इन्होंने सेटअप किया है, इम्प्लांट किया है। एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज ट्रीट वाटर इज 700 किलोलीटर पर डे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पानी होता है। और ये जो ट्रीटेड वाटर है इनका, ये ट्रीटेड वाटर है जो ये प्लांट्स और ट्रीज के इरिगेशन के लिए नर्मदा रिवर का जो बैंक है, वहां पे उसके किनारे पर जो फ्लोरल प्लांट्स है या जो ट्रीज है, उसको सींचने के लिए ये पानी ये लोग यूज करेंगे। तो ये बहुत ही रिसेंट सा एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट भी इसको अभी प्रमोट कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये उस लेवल पे कर सकते हैं, तो आप भी अपने लेवल पे ये चीज जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर उमरगांव क्लब ने स्कूल में किया था। और स्कूल में हमने क्या किया था कि गवर्नमेंट स्कूल में किया था, जहाँ 630 बच्चे पढ़ते हैं। और वहां पे जनरली एक दिन का 4000 से 5000 लीटर पानी, मतलब ग्रे वाटर जनरेट होता है। हाउ कि जो बच्चे वॉश एरिया में जाते हैं, हैंड वॉश वगैरह करते हैं, और वहां पे आजकल यहाँ पे जो एक सिस्टम है जिसे मिड डे मील कहा जाता है, मध्याह्न भोजन, तो वो किचन भी आजकल सारी बड़ी उसकी सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में होता ही है। तो हमने क्या किया था कि ये जो टांकी का जो पानी है, वाटर टैंक का पानी, जहाँ से बच्चे हाथ वगैरह धो रहे हैं, वो पानी, और जो मिड डे मील बनाने वाला जो किचन है, वहां उनके किचन से जो पानी निकलता है, वो पानी, इन दोनों को हमने ज्वाइन करके वहां पे जो एक खाली प्लॉट पड़ा था, वहां पे उसका आउटलेट दे दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली प्लॉट था। फिर हमने इस तरह से वहां पे ओसीबी के दौरान हमने ये प्रोजेक्ट किया हुआ था वहां पे। और इस तरह देखिए कि आप वहां पे कितना अच्छा गार्डन वहां पे डेवलप हो गया है। वहां पे फ्लोरल प्लांट्स, इवन उन्होंने कुछ वेजिटेबल भी लगाए थे, वेजिटेबल प्लांट्स भी लगाए थे। और लास्ट में आप देख रहे हैं एक जो राइट साइड में जो सबसे नीचे जो इमेज है, वहां पे वो दिखा रहे हैं कि जो इस बागीचे से, जो इस गार्डन से सब्जियां निकली हैं, वही सब्जियां उन्होंने फिर से मिड डे मील में यूज की हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज 600 650 बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वहां पे आज इतना सारा पानी एवरी डे जनरेट होता है, ग्रे वाटर। और इसको हम इस तरह से बिल्कुल भी रीयूज कर सकते हैं। तो यह एक कारगर तरीका है। ये जो फीडबैक मिला है हमको वहीं की प्रिंसिपल से मिला है कि देखिए, इस तरह से हमने ये सब्जियां फिर से हमने यूज की हुई है। तो हर एक स्कूल में ये चीज आप कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी जगह की जरूरत है, जहाँ पे आप इसका आउटलेट किसी गार्डन में दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं होते हैं। आपको ट्रीटमेंट की कब जरूरत पड़ती है? जब वहां पे उस पानी में हार्श केमिकल्स जो हो या पेंट्स हो, इस तरह का कोई अगर उसके अंदर में मिलावट हो, तभी यू हैव टू ट्रीट द वाटर। अदरवाइज यू कैन यूज दिस वाटर एज इट इज। नेक्स्ट स्लाइड। So this is all about grey water management and groundwater recharge. This is a very small step towards the environment. लेकिन मैं समझती हूँ एक छोटी सी सबकी अगर पहल हो तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा सकती है। और ये हमारा जो क्या कहते हैं, फ्यूचर आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छा सा हम लोग एक सबक दे पाएंगे, उन्हें कुछ सिखा पाएंगे कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट और हाउ इट इज नेसेसरी। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग, इट्स वेरी इजी टू डू। इसमें कोई भी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत आप इजीली कर सकते हैं। तो आई गेस कि आप सबको ये आइडिया समझ में, ये बहुत बेसिकली मैंने समझाया है,
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है ताकि आप सब लोग ये समझ सके और इसमें क्या कहते हैं इजीली आप ये चीज आप आपकी जगह पे जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे ये सेटअप कर सके, इंस्टॉल कर सके। तो मैं पूनम जी से अब कहूंगी कि आप अनम्यूट करें, अगर कोई क्वेरीज या किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट इफ क्वेश्चंस है आपको, आप जैसे रेज हैंड किया है, हार्मी बारो जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज आपके क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो। यस, कोई क्वेश्चन है? हेलो, मेरे हिसाब से शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीबॉडी हैज। उर्मिला तोमर जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज आप अनम्यूट करिए आपके। जी, हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक एप्रिसिएशन है कि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा पूरा सेशन जो है, जो ग्रे वाटर हमें वास्तव में नहीं पता चलता कि हम इतना सारा ग्रे वाटर हम प्रोड्यूस होता है। तो जी, जी। ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि आज तक की जितनी वेबिनार हुई हैं उसमें ये एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छा वो है। मेरे कॉम्प्लीमेंट आप सब लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Any other questions are there? Please raise your hand if anybody has questions. Yes, question है किसी के पास तो हम लोग वनीता मैम, प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट अनम्यूट करने के लिए। यस। जी, वनीता Hello. जी। हाँ जी, बोलिए। This is a very one doubt I have is about the grey water. Even if you use that grey water in the garden of soap and all, I think it will be harmful. So what we do for that grey water that we want to? हाँ, देखिए जहां तक मेरा जो अभी तक का जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से जो बहुत डेलिकेट प्लांट्स होते हैं मैम, उनके लिए ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा ये वाटर, तो आप इसको डायरेक्टली आपके फ्लश में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई माइल्ड सोप यूज करते हैं Ma'am, तब भी about the soap and is harmful for the plants? हाँ, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन मैम। Am I audible? Yeah. Am I audible? Yes, yes, Yes. ma'am. Yes, please. You there? Okay. When we are using soap or anything, will not be it harmful for the plants? What we do for that? Yes, yes. I'm saying that कि देखिए अगर बहुत हार्श केमिकल, बहुत हार्श सोप, आप डिटर्जेंट बहुत हार्श वाला यूज कर रही हैं, देन यू हैव टू जॉइन दैट पाइपलाइन टू योर फ्लशेस, टॉयलेट फ्लशेस। लेकिन अगर कोई माइल्ड सोप आप यूज कर रही हैं तो बहुत डेलिकेट प्लांट्स को ही नुकसान होता है, अदरवाइज अगर आपके बड़े बड़े ट्रीज हैं तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर ज्यादा इसका पानी वाला, ज्यादा सोप वाला पानी है तो आप उसको डायरेक्टली फ्लश के अंदर में ही यूज करें।
और जो आपका आरओ का जो पानी है आप वो गार्डन के लिए दे सकती हैं। अच्छा, और दूसरा, when we are doing rainwater harvesting, Yes. what should be the size of the drum? Is it depending on the water flow that we are connecting from the rooftop? No, not Anything necessarily, like ma'am. No, not necessarily. 250 liters is ideal height for the height or capacity of the drum. But if you are having a big drum, more capacity, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250 liters is the ideal size for this project only. अच्छा, और जो गड्ढा हम खोदेंगे ना, तो जी उसके जी। लिए ड्रम हिसाब से ही होना चाहिए कि वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ है जो नहीं, गड्ढा ऐसी बात, हाँ, ड्रम थोड़ा के सा सी ड्रम का जो भी डायमीटर है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको खड्डा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे पत्थर डालने हैं। यू हैव टू कैरी द सॉरी, जो 4x4 जो आपको मेजरमेंट्स दिए गए हैं, वो मेजरमेंट्स 250 लीटर के ड्रम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, राइट। फॉर 250 liters का ड्रम 4x4 इज मेजरमेंट्स। if you are having a bigger drum, then the measurement will be changed. But 250 liters के ड्रम के लिए 4x4 is very ideal measurements, ma'am. It blocked with the use. I have to check the drum for the patency Yes, ma'am. Please repeat. of the holes. जो years के हिसाब जो हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। Actually, your voice is not clear, ma'am. Okay, the holes जो बना रहे थे ना हाँ ड्रम जी। को, वो कभी बंद हो सकता मैम, your voice is breaking, but still मुझे जितना भी समझ आ रहा है, I am telling you that है क्या? जो आपको yeah, ब्लॉक हो सकता है क्या? नहीं ब्लॉक नहीं होगा आपको। सी जहाँ पे आपका रेन वाटर हाँ, कलेक्ट हो रहा है होल्स रूफ बंद टॉप हो में, सकते हैं क्या? विथ यू, हाँ, नो, ड्रम्स के होल, ड्रम्स के ड्रम्स के होल होल्स। ब्लॉक नहीं होंगे मैम, नहीं होंगे, ड्रम्स के ब्लॉक नहीं होंगे। फ्रॉम लास्ट ईयर जो हमने प्रोजेक्ट किया था, आज तक उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। जितना भी पानी है वो परकोलेट हो जाता है, क्योंकि हमने साइड में पत्थर डाले हैं, राइट। तो साइड में जो अच्छा पत्थर अच्छा डाले हैं उसकी वजह से वो होल्स ब्लॉक नहीं होंगे। अच्छा, वो कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, जैसे वीट, जो ब्रिक्स या कुछ भी डाल Yeah, सकते हैं ना bricks, पत्थर। stones, bigger or smaller stones, you can use, even a cemented stone you can use. Bricks के लिए ज्यादा I am not going to suggest that bricks, क्योंकि बाद में उसका क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ब्रिक वाला। अच्छा तो अच्छा, ओके तो गो फॉर स्टोन्स, बिगर स्टोन्स, स्मॉलर स्टोन्स, इस तरह से, और सीमेंटेड स्टोन्स वेस्ट। और ओके टेरेस ओके। आपको क्लीन रखना होगा, क्योंकि टेरेस के पानी जो भी पानी वहां पे कलेक्ट हो रहा है, वो उस पाइप के अंदर में वो कचरा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पाइप विल बी ब्लॉक। Okay, okay, yes, yes, yes. So we can put some wire mesh for that, whatever outlet that is, wire mesh लगा सकते हैं, वो outlet जो आता है Yes, ना yes, yes, terrace से, yes, yes, ma'am. so Yes, you that can we do that. can do, You yeah, can do that. yeah, It will, yes, we yes. can do. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. It's a very nice lecture, and we'll do it in. I'm from Goa, so definitely I'll do some projects for the rainwater harvesting. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thanks a lot. Thanks Yeah, a lot for because joining we this are webinar. having so much heavy rain that the water is just getting wasted here in Goa. Yeah, yeah, Okay. yeah, Yeah. Thank you so much. yeah. Thank you, ma'am. Mansi ji, I have sent you request to unmute. Yes, I'm here. Am I audible? Yes, ma'am. I would like to go back to the last question about the soaps and detergent what we were talking about. There are Yeah. certain bioenzymes also available into the market, which Yeah. are mostly homemade also, or mostly available in market. So that can be a more sustainable option for having this grey water recharge treatments. So you don't have to worry about the chemicals going into the ground if you are using enzymes. Yeah, yeah. That's right. Yeah, she is very right, and I appreciate your feedback, ma'am. ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। Any other questions are there?
या किसी ने यहाँ पे पूछा है कि एसी वाटर हम यूज कर सकते हैं, तो यस, बेसिन के लिए आप ये एसी वाटर भी यूज कर सकते हैं। बेसिन या फिर लॉन्ड्री के लिए यू कैन यूज दैट एसी वाटर। कोई क्वेश्चंस हैं अभी? इज देयर एनी क्वेश्चन? PDC Vanita madam, please आप unmute request. to Then accept regarding the bioenzyme, I am doing it at home, and we are demonstrating that project of bioenzyme making in some high secondary schools and schools in Goa. So regarding that bioenzyme, I am very happy with that bioenzyme, and I think everybody should start doing those bioenzymes. So whoever said it's very nice when Yes, ma'am. Surely, ma'am. You can share the information with us, and you we raise the will topic try. about Yeah. bio. Any other questions from audience? Yeah. Any suggestions? सुनीता मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज अनम्यूट करिए। Hello. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. अभी जो आपने बोला ना कि मतलब जिसने कुछ सजेस्ट किया था, वो Bioenzymes. उन्होंने जो सजेशन दिया तो वो बायोएंजाइम्स के बारे में। या मतलब उससे पहले जी। हाँ, तो वो रिपीट कीजिए ना प्लीज। मतलब किसने बोला था वो, अभी वो ठीक से समझ में नहीं आया अभी जो किसी ने आपको बोला ना, तो और आप बोले कि हाँ, पीडीसी आई थिंक वनीता मैम ने ये चीज बोली थी, तो आप उनको अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो वो फिर से उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वनीता मैम, Vanita ma'am, please accept the request to unmute. PDC Vanita ma'am. Yes. Ma'am, can you please repeat that bioenzymes regarding what are you doing with that bioenzymes? Someone wanted to listen the same. Yeah, I think that is may I know it? Hello. Yeah. Ma'am, please Ma'am. give us information regarding this bioenzymes. Okay, bioenzyme, you have to collect citrus pills, anything like या जो मौसमी किसी का भी पिल्स आप जमा कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा कट करके आप प्लास्टिक में डाल के you keep it in deep freeze. So then bioenzyme, you have to use plastic bottles, and in that you have to use 1:3:10. Like 1 has to be jaggery, 3 has to be pills, and 10 of water. Like अगर 330 है तो 30 into 3 it will be 90 of pill, and 30 into 10 will be 300. And always use the plastic bottles. So what happens after putting jaggery, all those bacteria will develop, eat that jaggery, and the gas will be formed. So initially, every day you have to release the gas from the bottles. So that preparation of bioenzymes will take 90 days. Then how you know that bioenzyme is formed is once the gas is stops forming, and all those pills will be settling down. So that time, like initially for 15 days, you release the gas every day.
And then afterwards, you can do it like once, twice in a week, depending on what gas is formed. So even on the green peas peels, pineapple peels can be used. But my experience is pineapple peels and green peas peels gives lots of gas. So much so that once that it just on the bottle cap blasted. Once I forgot to open that. So I advise that use that citrus peel, whatever, for that bioenzyme. And these Okay. bioenzyme I use for washing utensils, cleaning everything. So I think everybody should do it. Yes, yes. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. You can Google and find out about the bioenzymes. Okay. So you'll get Yes, the yes, details. ma'am. Yeah. Okay. Okay. Thank Yeah, you. thank you so much. Thank Yeah. you so much, ma'am. Any other questions? So shall we end the webinar? अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. मेल आईडी वहां पे दिया गया है. तो अगर फ्यूचर में भी आपको अगर कोई चैट रूम में भी आपको ईमेल आईडी दे दिया गया है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं. तो तेजल मैम, शैल वी एंड दिस वेबिनार? Yes, yes. A very good evening to each and everyone present over here. Dear, हमारे साथ 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जुड़े थे जब मीटिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन आज ही एक्चुअली हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की एक और मीटिंग डिक्लेयर हुई. उसका टाइम भी 9 o'clock था. तो कीर्ति जी, एक्चुअली वी हैव टू मैनेज एट बोथ साइड्स, बट आई एम वेरी हैप्पी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 308 सीमा कपूर, district chairman 305 Nisa Khankar, and district chairman 311 Sandhya Gupta are still with us. Thank you, Seema ji, Sandhya ji, and Nisa ji. I acknowledge our past district chairman, Dr. Rasmi Thakral, Suraksha Bathla, PDC Meera Roy, PDC Bina Desai, PDC Vanita ji, especially you take very active part in this webinar. I acknowledge all other Innerville stalwarts who have joined with us. I acknowledge all district officers of all the district. District Secretary Jaisri Amipara is with us, who is District Secretary of our District 306. Thank you so much to all of you, and last but not the least, my dear Innerville friend. Or very special thank you to organizing team of Ummargam Club District 306. President Kajal, past president, and my district project coordinator of water conservation, Kirti Jethwa, our today's speaker or facilitator, jo bhi bolo, our tech expert, Poonam Singh from Ummargam Club, district e-admin, Kavita Birari from Dhule Club. Thank you so much. अगर मैं किसी का नाम लेना मिस हो गया तो प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. एंड congratulations to Kirti ji and Ummargam team. Kirti ji, you have presented very well. I have attended 2 webinars at a time. I was here also, and I attended my another very important webinar with our association president Preeti Gugnani ji also. You have taken in a very simplified way and pictorial presentation. You have given so many examples about grey water management and water discharging project throughout the India.
but I'm impressed by the work done by you at your home club, Umargam Club, District 306. I am aware of your work since last 2 years. Last year आपने बहुत ही अच्छा काम किया था, बिल्कुल मेरे ऑब्जर्वेशन में था, इसलिए मैंने आपको सिंगल हैंडेड यह काम सौंपा है और आप पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हो। हमने पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में भी वेबिनार लिया, मेरे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को बताया, काफी कुछ पब्लिक डिमांड आई और हमने ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट वेबिनार में कन्वर्ट किया। एक्चुअली आई वांट टू प्रमोट यू पीपल बिकॉज कीर्ति, पर्टिकुलरली you are a really very deserving candidate to give this assignment because you have studied about this subject, you have passion about this subject, you are working passionately on this subject. And I am very much sure that people who have joined today all will appreciate your this presentation and your work. I have heard about special compliments from some Innerville friend. She told that this is the one of the best webinar I have attended so far about water harvesting or water conservation or water discharge project or grey water management. This is really proud moment for all of us, particularly for me as a district chairman of Post District 306. ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कीर्ति जेठवा को मैं मतलब ये फ्रीडम देती हूँ कि पूरे देश में से कहीं से भी इंक्वायरी आए, आप को फ्री हैंड है उनके साथ जुड़ने का, उनको आप गाइड करो, हेल्प करो और ऑन रिक्वेस्ट आप वीडियो भी उनको सेंड करो और यू कैन मेक योर नेशनल टीम and my blessings and best compliments to go ahead about this very precious work to give our mother nature. Thank you. Over to you, Poonamji. Thank you, Tejal ma'am. I would like to thank DC Dr. Tejal Desai for giving us the opportunity to conduct this webinar and help spread knowledge about recycling water at a smaller scale. I would like to extend my heartiest gratitude to our district e-admin, Kavita Birari madam, for handling the whole show with her technical support for creating this Zoom and YouTube link. I would also like to thank all the DCs of all the 10 districts and their respective EC members and club members for contributing their precious and valuable time to attend this webinar. Thank you to all the Innerville Club sisters across different states and districts for joining us today. Last but not the least, I am thankful to IWC Umargaon for their never-ending support. I would like to conclude with a small thought that each one of us can make a difference, but together we can bring change. Thank you. Thank you, Poonamji. Nicely said. Okay. Good night. Sabba khair, everybody. Good night. And should we end the meeting? Yes, yes, ma'am. With again Thanksgiving to whole Umargam team, particularly our facilitator, Kirti Jethwa. Good night. Thank you. Thank Good you night. so much. Good night.